Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 2. In this video, we will learn the sentences which are frequently used in our day to day life. You have to speak with me or after me so that you can also be a fluent speaker. But you have to remember one thing, continuity is very important. You should be continue. Hey guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, please subscribe to the channel, and if you're already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence, मुझे ज्ञान की प्यास है, तो कहिए I have thirst of knowledge. I have thirst of knowledge. Then next sentence, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी, इसके लिए कहिए I'll beat you. I'll beat you. या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो I'll beat you up. I'll beat you up. The next sentence, हमें आपसे हमदर्दी है, तो कहिए We have sympathy with you. We have sympathy with you. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जिसके साथ कोई ट्रेजिडी हुई है, तो आप कहते हो ना हमें आपसे हमदर्दी है, तो कहिए वी हैव सिंपैथी विद यू. द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझ पर लांछन नहीं लगा सकते, तो कहिए यू कैन नॉट कास्ट एस्पर्जन ऑन मी. यू कैंट कास्ट एस्पर्जन ऑन मी. एस्पर्जन होता है लांछन. नेक्स्ट सेंटेंस, बाजार ठसाठस भरा हुआ था, तो कहिए मार्केट वॉज पैक्ड. मार्केट वॉज पैक्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट गए, वहाँ बहुत भीड़ थी, आप घर पे आके मम्मी से बताते हो मम्मा मार्केट में बहुत भीड़ थी, बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ था, तो आप मम्मा को बोलिए मम्मा द मार्केट वॉज पैक्ड. द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तब तक नहीं बोलूँगी जब तक कोई मुझसे ना बोले, तो कहिए आई वोंट स्पीक unless spoken to. I won't speak unless spoken to. The next sentence, मुझे उसका घर मालूम है, तो कहिए I know where his house is. I know where his house is. The next sentence, जहाँ तक मुझे पता है वो यहाँ रोज़ आते हैं, तो कहिए As far as I know he comes here every day. As far as I know he comes here every day. The next sentence, मालूम पड़ता है तुम्हें कोई समस्या है, तो कहिए It appears that you have a problem. It appears that you have a problem. या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो It seems that you have a problem. या फिर कहिए It seems that you have got a problem. The next sentence, वह पिछड़ रहा है, तो कहिए He is lagging behind. He is lagging behind. किसी चीज़ में पीछे पिछड़ने को हम कहते हैं lag behind. तो आप बोलिए He is lagging behind. The next sentence, वह कक्षा में पिछड़ गया है, तो कहिए He has lagged behind in the class. He has lagged behind in the class. The next sentence, ये महंगाई जान ले रही है, तो कहिए This dearness is killing. This dearness is killing. Dearness होता है महंगाई, तो ये महंगाई जान ले रही है. This dearness is killing. Then next sentence, वह तुम्हारी बुराई करती है, तो कहिए She talks ill of you. She talks ill of you. ill होता है बीमारी भी होती है, और कुछ बुरी बात करना तो हम ill talks कहते हैं. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या बुराई है, तो कहिए What evil is there in it? What evil is there in it? Then next sentence, कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा, तो कहिए Something or the other must happen. Something or the other must happen. तो कुछ ना कुछ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं something or the other. तो अगर आपको ये कहना है कि कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा, तो कहिए Something or the other must happen. कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, तो कहिए Something or the other must have happened. Something or the other must have happened. Next sentence, उसने तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाया, तो कहिए He casted aspersion on your character. He casted aspersion on your character. The next sentence,
उसने हमारे बेटे को कुछ टोना टोटका कर दिया है, मैं कह रही हूँ। ऐसा मम्मी लोग बोलती हैं ना, मम्मी पापा से कहेंगी उसने कुछ टोना टोटका कर दिया है, कह रही हूँ मैं, बात मान लो मेरी। तो अगर उन्हें कुछ ऐसा कहना है कि उसने हमारे बेटे को कुछ टोना टोटका कर दिया है, मैं कह रही हूँ, तो आप इंग्लिश में कहिए शी हैज़ अफेक्टेड आवर सन विथ चार्म, आई एम टेलिंग यू। शी हैज़ अफेक्टेड आवर सन विथ चार्म, आई एम टेलिंग यू। चार्म होता है टोना टोटका करना, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी करो कहीं वह कुछ कर ना बैठे, तो कहिए हरी अप लेस्ट ही शुड टेक अ रॉन्ग स्टेप। हरी अप लेस्ट ही शुड टेक अ रॉन्ग स्टेप। द नेक्स्ट सेंटेंस, हमें मालूम हुआ है कि तुम कार खरीद रहे हो, तो कहिए इट हैज़ कम टू आवर नॉलेज दैट यू आर बाइंग अ न्यू कार। It has come to our knowledge that you are buying a new car. The next sentence, मुंह मत बनाओ, या फिर हम कहेंगे शक्लें मत बनाओ। इस बात को इंग्लिश में कहिए डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। जैसे कभी कभी हम गुस्से में छोटे बच्चों की पिटाई कर देते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए बच्चों की पिटाई, गलत बात होती है, बट कभी कभी हम उन्हें गुस्से में डांट देते हैं तेज से, तो अजीब अजीब से फेसेस बनाने लगते हैं। तब हम उनसे कहते हैं ना कि मुंह मत बनाओ, या फिर हम कहते हैं शक्लें मत बनाओ। तो अब हमें इंग्लिश में कहना है डोंट मेक फेसेस। देन नेक्स्ट सेंटेंस, शक्लें बनाना बंद करो। इस बात को हम कह सकते हैं स्टॉप मेकिंग फेसेस। स्टॉप मेकिंग फेसेस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्विट मेकिंग फेसेस। क्विट मेकिंग फेसेस। क्विट मतलब ही स्टॉप करना होता है, बंद कर देना किसी काम को। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे शक्ल से जानती हूँ, तो कहिए आई नो हिम बाय अपीयरेंस। आई नो हिम बाय अपीयरेंस। जैसे आप ये कहो कि मैं उसे शक्ल से तो चेहरे से पहचानती हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानती, तो इस बात के लिए आप कहिए आई नो हिम बाय अपीयरेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस, उसका चेहरा चमक उठा, तो कहिए हर फेस लिट अप। हर फेस लिट अप। लिट अप होता है चमक उठा। जैसे आप किसी अपने लविंग वंस को, किसी बहुत प्यारे इंसान को बहुत दिनों बाद देखते हैं, तो उन्हें देख के आपका चेहरा बिल्कुल चमक जाता है, आप खुश हो जाते हो। तो इंग्लिश में हमें कहना है हर फेस लिट अप। और अगर आपको बॉय के लिए कहना है तो कहिए हिज फेस लिट अप। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आने वाले महीने में मैं आ रहा हूँ, तो कहिए आई एम कमिंग इन द इंश्योरिंग मंथ। आई एम कमिंग इन द इंश्योरिंग मंथ। इंश्योरिंग मंथ या फिर आप अपकमिंग मंथ भी बोल सकते हो। आई एम कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह महीने के महीने मिल जाएगी, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए यू विल गेट योर सैलरी मंथ बाय मंथ। यू विल गेट योर सैलरी मंथ बाय मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी थी, तो कहिए द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। क्राउड मतलब होता है भीड़, और ठसाठस भरना स्टफ्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सोच में पड़ गई थी, तो कहिए शी वॉज इनग्रॉस्ड इन ब्रूडिंग। शी वॉज इनग्रॉस्ड इन ब्रूडिंग। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो शी वॉज इनग्रॉस्ड इन म्यूजिंग। म्यूजिंग और ब्रूडिंग दोनों सेंटेंस हम यूज़ करते हैं सोच में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोच में बैठा था, तो कहिए ही सैट ब्रूडिंग। ही सैट ब्रूडिंग। या फिर हम कह सकते हैं ही सैट म्यूजिंग। ही सैट म्यूजिंग। जैसे हम किसी बच्चे के लिए कहें कि वह सोच में बैठा था, तो हम कह सकते हैं ही सैट ब्रूडिंग, या फिर हम कह सकते हैं ही सैट म्यूजिंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुस्कुराते हुए अंदर आया, तो कहिए he came in with a smile on his face. He came in with a smile on his face. कुछ लोग हमेशा स्माइल करते रहते हैं, तो उनके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो he came in with a smile on his face. Then next sentence, भिखारियों को भिक्षा मत दो, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए don't give alms to beggars. Don't give alms to beggars. बेगर होता है भिखारी और आर्म्स होते हैं भिक्षा। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग है ALMS, बट इसे पढ़ते हैं आर्म्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस है धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा।
तो इस बात को इंग्लिश में कहिए, स्पीक लो लेस्ट यू विल बी ओवरवेल्म्ड। स्पीक लो और यू विल बी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड होता है सुन लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।